A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th business studies. You know very well in the last few videos we discussed the last chapter of business studies, that is a consumer protection. In this chapter we already discussed the various important theoretical concept related to the consumer protection. Firstly, we discussed what are the meaning and concept of the consumer protection. Thereafter, we discussed what are the advantage of consumer protection from the consumer point of view as well as from the business point of view. Thereafter, we already discussed that is the problems faced by the consumer day by day. You know very well there are various kind of problem which are faced by the consumer daily. As well as the last video we discussed the 6 important rights given to all consumer by Consumer Protection Act 1986. According to our Indian Constitution, a specific act passed for the promotion and protect the consumer interest, that is the Consumer Protection Act 1986. According to this act, consumer provide us according to this act, consumer have a different kinds of responsibility as well as their rights. With the help of these rights, consumer can easily buy the product, use them accordingly, as well as if there any kind of suggestion, complaints, so he can get redressed by the specific forums. So we can see that what is a consumer protection and what are the rights of the consumer according to the Consumer Protection Act 1986. So we can see that there are basically 6 rights given to every consumer by the Consumer Protection Act 1986, and these rights are: number 1, rights to choose; number 2, right to safety; number 3, right to be heard; number 4, right to seek redressal; number 5, right to consumer education; and number 6, right to inform. So all the rights will be summarized into the six categories, which are also learned by the one phrase, that is SICHER, SICHER. S for right to safety, I for right to inform, C for right to choose, H for right to be heard, E for right to consumer education, and R for right to redressal. So after discussing the 6th right in the last video, now we will move to the very important term, that is a meaning of consumer according to Consumer Protection Act 1986. You know very well जो एक्ट बनाया गया दैट इज़ अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें कंज्यूमर की क्या डेफिनेशन होगी, व्हाट डू यू मीन बाय द कंज्यूमर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो बिफोर द explaining any other kind of thing related to this chapter, first of all we have to knowledge about the what is the meaning of consumer according to Consumer Protection Act 1986. So you can see that the meaning of consumer basically, consumer is a person who buy any goods or avail any services for a consideration which has been paid or promised, or partially paid and partially promised, or any other scheme or deferred payments. So who's a consumer? So consumer एक person है, you know very well, it is an artificial person as well as a natural person. Natural person जैसे हम लोग भी हो सकते हैं, as well as कोई firm या कोई company भी हो सकती है. Who buy any goods or avail any services, जो किसी goods को purchase करती है या फिर किसी service को avail करती है, for a consideration which has been paid, यानी उसके बदले उसे क्या देना पड़ता है, उस गुड्स एंड सर्विस को अवेल करने के बदले उसे कुछ कंसिडरेशन पे करना पड़ता है. अगर वो कैश में कंसिडरेशन नहीं पे करती है तो वो क्रेडिट के लिए उसको प्रॉमिस देती है. प्रॉमिस मीन्स प्रॉमिस करती है कि ये पैसा हम सर्टेन पीरियड के बाद पे कर देंगे. कौन प्रॉमिस करता है? दैट इज़ कंज्यूमर. और पार्शली पेड, या कुछ पैसा पे कर देता है, एंड पार्शली प्रॉमिस्ड, यानी कुछ पे कर देगा और कुछ के लिए प्रॉमिस रहेगा. और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यू नो वेरी वेल, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम कि, या फिर कोई अदर कोई स्कीम होगी जिसमें हम डेफर्ड पेमेंट का यूज़ कर सकते हैं. सो यू कैन सी दैट
According to Consumer Act 1986, the consumer is a person who buy any goods or avail any services. Number one thing is consumer is a person. Number two, who buy any goods or avail any services. Number three, for a consideration which has been paid or promised, यानी जो उसके बदले उसे कंसिडरेशन पे करना है, या तो उसे कैश में पे कर देगा या तो क्रेडिट में रहेगा, यानी प्रॉमिस किया रहेगा. या नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनेगी, और पार्शली पेड एंड पार्शली प्रॉमिस्ड, या तो उसमें से कुछ पे कर देगा और कुछ के लिए प्रॉमिस रहेगा. प्रॉमिस मीन्स क्रेडिट. और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, या फिर कोई और स्कीम हो जिसमें हम डेफर्ड पेमेंट करते हैं. डेफर्ड पेमेंट मतलब प्रेजेंट में पेमेंट ना करके इन फ्यूचर में पेमेंट करना. द टर्म इंक्लूड्स एनी अदर यूज ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर. इसमें ये भी आपको याद रखना है कि इस टर्म में ये भी इंक्लूड होता है कि आप गुड्स को जब परचेस करोगे तो आपके पास बायर का अप्रूवल भी आता है, मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर. The term consumer, however, does not include a person who obtains such good for resale for any commercial purpose. ये याद रखिएगा कि कंज्यूमर का मतलब अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर में हम कौन से पर्सन को इंक्लूड नहीं करते हैं, जो किसी गुड्स को रीसेल के लिए या फिर कॉमर्शियल पर्पस के लिए परचेस करते हैं. सो you know very well who's a consumer. Consumer is a person who buy any goods or avail any services for a consideration which has been paid or promised, or partially paid and partially promised, or under any scheme of deferred payment. However, it does not include a person who obtain a goods फॉर रीसेल फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पस, यानी उस गुड्स को इसलिए नहीं खरीद रहे हैं जिससे हम उसको सेल कर देंगे और या फिर कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टमर. देयर इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द कस्टमर एंड कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन होता है, जो उस गुड्स को कंज्यूम करता है. ओके जैसे सपोज मेरे फादर ने दुकान पे जाकर 1 kg मैंगो लेकर आए और उसके बाद वो 1 किलो मैंगो जो हमारी पूरी फैमिली मिलके खाई, फादर नहीं खाए मेरे, तो फादर इज़ अ कस्टमर, वेयर इज़ अ फैमिली मेम्बर इज़ अ कंज्यूमर. कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स, यानी कंज्यूमर कौन होता है, वो बंदा होता है जो गुड्स को कंज्यूम करता है. एंड कस्टमर कौन होता है, जो गुड्स को परचेस करता है. सो इसीलिए ये भी कहा गया है कि गुड्स को जो भी यूज़ करेगा, एनी अदर यूज़र ऑफ सच गुड्स, जो भी उस गुड्स को यूज़ करेगा, जैसे कंज्यूमर अगर किसी गुड्स को यूज़ कर रहा है तो ये यूज़ बायर के अप्रूवल पे होनी चाहिए. बायर तो कौन था, फादर, बट यूज़ कौन कर रहे हैं, पूरी फैमिली मेम्बर. तो कस्टमर जो है वो बायर है, बस कंज्यूमर कौन है, फैमिली पर्सन है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द कस्टमर एंड कंज्यूमर. देयर इज़ अ बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अ कस्टमर एंड कंज्यूमर. कस्टमर हु बाई द गुड्स एंड कंज्यूमर हु कंज्यूम द गुड्स. ओके सो कंज्यूमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि उसे बायर का अप्रूवल लेना पड़ता है. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर. ओके अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर. इंडिया में कई तरह के एक्ट्स बनाए गए हैं ताकि हम अपने कंज्यूमर को, यू नो वेरी वेल पब्लिक भी क्या है, कंज्यूमर है. सो पब्लिक को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके एज अ कंज्यूमर, बिकॉज यू नो वेरी वेल जब हम किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस को परचेस करते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं, तो आफ्टर कंज्यूम देयर वेरियस काइंड ऑफ इंसिडेंट विच हार्म टू द फिजिकली एज वेल एज मेंटली एज वेल एज इकोनॉमी monetary, that is known as to the consumer. So we can see that lots of effect to the consumer, चाहे उन्हें फिज़िकली कोई इफ़ेक्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो मेंटली हो. तो हम प्रोडक्ट के साथ ऐसा देखते हैं कि अगर हम कुछ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो एज अ कंज्यूमर वी फेस अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. सो एज अ कंज्यूमर गवर्नमेंट ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें कुछ लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए हैं. सो सच लीगल प्रोटेक्शन आर एज फॉलोज. That is, a legal framework of India consists of a number of regulation and acts which provide a protection to consumer. इंडिया में कई तरह के लीगल एक्ट्स बनाए गए हैं और कई नंबर्स में रेगुलेशन प्रोवाइड किए गए हैं जिससे कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो सकें. और ये कुछ प्रोटेक्शन इस तरह से हैं. द फर्स्ट वन इज़ द कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1986.
The first and very famous act which provide the safeguard to the consumer against the unfair trade practices. So what is this act? You know very well. The Consumer Protection Act 1986 seeks to protect and promote the interest of consumer. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रमोट करता है. द एक्ट प्रोवाइड सेफ गार्ड्स टू कंज्यूमर अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, डिफिशियंट सर्विस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन. यानी ये एक्ट क्या करता है? कंज्यूमर्स को सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है. किसके अगेंस्ट? डिफेक्टिव गुड्स के अगेंस्ट, डिफिशियंट सर्विसेज के अगेंस्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट और कोई भी अदर तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन हो उसके खिलाफ. द एक्ट स्टेटस ऑन सेटिंग अप ऑफ अ 3-टायर मशीनरी. ये भी बात याद रखिएगा, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को, क्लेम्स को रिजॉल्व करने के लिए 3-टायर मशीनरी स्टैब्लिश की गई है. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कितनी टायर मशीनरी स्टैब्लिश है? दैट इज़ 3-टायर मशीनरी कंसिस्टिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, जिसमें सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, नंबर 2 स्टेट कमीशन एंड नंबर 3 इज द नेशनल कमीशन. It also provide a framework for the formation of Consumer Protection Council in every district. यानी ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होते हैं एंड स्टेट एंड ऑल्सो एट एपेक्स लेवल. यानी स्टेट लेवल पे भी होते हैं और अपेक्स लेवल में. तो अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो उनको क्या बोला जाता है? डिस्ट्रिक्ट फोरम. स्टेट लेवल में क्या बोला जाता है? स्टेट कमीशन. और अपेक्स लेवल यानी सबसे टॉप लेवल पे क्या होता है? नेशनल कमीशन. इट इज़ एप्लीकेबल टू टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग, बिग और स्मॉल, प्राइवेट और पब्लिक. यानी ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं ये हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होती हैं, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस, चाहे वो गुड्स में डील करे चाहे सर्विस. यानी हर जगह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोवाइड द सेफ गार्ड टू एवरी कंज्यूमर अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, deficient service, unfair trade practices and any kind of exploitation. And this act also provide a 3 setup machinery to resolve these complaint and claims of the customer. That is a district forum at district level, state commission at the state level and national commission at the apex level. And this act is applicable for all types of the undertaking, whether it is big or small, private or public, manufacturing or trading, dealing in goods or services. Okay, so this is the first act which provide the legal protection to the consumer. The number second and very famous act which also provide the protection to the consumer, that is the Contract Act. The Contract Act 1982 ये अमेंड हुआ है. पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था, बट आफ्टर दैट ये अमेंड होगा 1982. इट लेज डाउन द कंडीशन इन विच द प्रॉमिस मेड बाय द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर बाइंडिंग ऑन ईच अदर. यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या 1982 बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ही है हमारे इंडिया में. ये एक्ट इस तरह से देता है कि सपोज दो पार्टीज़ मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, दो लोग मिलकर आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि जिसमें एक पार्टीज़ और दूसरे पार्टीज़ के बीच में किसी काम को करने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट होता है. जैसे यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट. मुझे ही स्कूल ने कहा कि आपको 2 साल आपको पढ़ाना है, 2 साल का मेरा स्कूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया. तो हम स्कूल ने मुझे क्या ऑफ़र दिया कि मुझे पढ़ाना है, यानी मुझे अपनी सर्विस देनी है और स्कूल उसके बदले मुझे क्या देगा? पैसा देगा. सो दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी ऊपर नीचे होता है. यू नो वेरी वेल क्या ऊपर नीचे होता है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंडीशंस, रूल्स. हो सकता है 2 साल से पहले मैं ही छोड़ दूं, हो सकता है 2 साल से पहले स्कूल हमें निकाल दें. सो सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स फेस बाय द बोथ द पार्टीज़, बट वो चीज़ें रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. तो दोनों पार्टीज़ का जो एक्सेप्टेंस है चाहे रिजेक्शन है रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है. दैट्स वाई कस्टमर एक्ट ऑल्सो सर्व द प्रोटेक्शन टू द एवरी कंज्यूमर. नंबर थर्ड, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. It safeguard and relieves the buyer when goods purchased do not comply with express or implied condition warranty. ये याद रखिएगा.
कि ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये गुड्स के सेल के लिए कैटेगराइज की गई है कि हम गुड्स को कैसे सेल करेंगे, यानी ये कंज्यूमर को या बायर को इससे सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है कि जब हम किसी गुड्स को खरीदते हैं, डू नॉट कंप्लाई विद एक्सप्रेस और एम्प्लॉय कंडीशंस एंड वारंटीज़। अगर हम किसी गुड्स को खरीद रहे हैं, उसके साथ कोई गारंटी है, वारंटीज़ है, तो ये एक्ट हमें प्रोटेक्ट करता है। गारंटीज़ नहीं है तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परचेज एनी काइंड ऑफ गुड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे देखें। और सेल ऑफ गुड्स में कई तरह की क्राइटेरियाज़ हैं, कई तरह की चीज़ें हैं जिसे आप फर्दरली क्लासेस में स्टडी करोगे। सो बेसिकली ये जानो कि गुड्स को सेल कैसे करना है, गुड्स को सेल करते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ें माइंड करनी है फॉर द सेलर, एंड बायर को हमें किस तरह से रिलीफ और सेफ गार्ड प्रोवाइड करना है। दिस एक्ट इज़ टोटली बेस्ड ऑन सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। द नंबर 4 एंड वेरी फेमस, इधर भी ये एक्ट काफ़ी फेमस हुआ था, दैट इज़ द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, और रिसेंटली अभी 2020 में से अमेंड किया गया है आफ्टर द कोविड सिचुएशन। कोविड सिचुएशन के दौरान द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं। ये बेसिकली एक्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारे देश में जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको लेकर किसी प्रकार का कोई अनफेयर ट्रेड ना हो। बेसिकली यू नो वेरी वेल, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें कंज्यूम करना कंपल्सरी होता है। कंपल्सरी मीन्स जिन्हें हम कंज्यूम करते ही करते हैं। तो अगर हम उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। सो उस प्रोडक्ट की सप्लाई रेगुलर हम मार्केट में होनी चाहिए। नंबर 2, उस प्रोडक्ट की प्राइस जो होनी चाहिए एफोर्डेबल प्राइस होनी चाहिए, मनमाना प्राइस नहीं होना चाहिए। और उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि अमीरों के पास एसेंशियल कमोडिटीज़ ज़्यादा अवेलेबल है और गरीबों के पास नहीं। जैसे यू नो वेरी वेल, जब कोविड-19 बहुत ही हाई पीक पे था, अभी भी है हमारे देश में हाई पीक पे, जब लॉकडाउन का सिचुएशन था तो गवर्नमेंट ने सैनिटाइज़र एंड मास्क को एसेंशियल कमोडिटीज़ में रख दिया था, यानी ये सारी चीज़ें एसेंशियल कमोडिटीज़ में। दैट्स वाई ये सारे प्रोडक्ट सस्ते हो गए थे। आपको पता होगा एट द बिगनिंग ऑफ द कोविड सिचुएशन प्राइस ऑफ द सैनिटाइज़र एंड द मास्क विल गोज़ वेरी हाई। सो इससे हमारी आम जनता उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद लगी, उसकी ब्लैक मार्केटिंग होने लगी थी। तो गवर्नमेंट ने उसकी ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए यू नो वेरी वेल कई तरह की सैनिटाइजर्स कंपनीज़ और कई तरह के जो मास्क बनाने वाली कंपनीज़ उनको ऑफ़र किया और इस प्रोडक्ट को एसेंशियल कमोडिटीज़ में लाके लिस्ट करा दिया, जिससे क्या हुआ कि आप इस तरह के प्रोडक्ट पे मनमाना प्राइस वसूल नहीं कर सकते, क्योंकि एसेंशियल और इसकी सप्लाई रेगुलर होनी चाहिए मार्केट में, और साथ ही साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए मार्केट में। हर तरह के बंदों के पास इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। सो द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 इट एम्स टू कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, इंश्योरिंग प्राइस कंट्रोल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोवाइडिंग एक्शन अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़। यानी ये एक्ट हमें क्या करता है, एज अ कंज्यूमर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे बिलीव रखता है और किसी प्रकार का कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं तो उस पर कंट्रोल रखता है। सो यू कैन सी दैट देयर आर वेरियस काइंड ऑफ एक्ट। बहुत सारे एक्ट हैं जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है, उनको लीगल प्रोटेक्शन देता है, बट फ्यू ऑफ देम, इसमें से कुछ 4 एक्ट्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। द फर्स्ट एक्ट यू नो वेरी वेल, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो हम पढ़ ही रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, what do you mean by the consumer, what do you mean by consumer protection and what are the rights of the consumer, and उसके साथ साथ हम लोग देख ही रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, we discuss the legal protection to the consumer, that is the consumer protection act, and number 2 is contract act 1872, that is 1982, as well as the sale of goods act 1930 and the essential commodities act 1955। इसके साथ बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे हॉलमार्क्स के लिए एक्ट हैं, BIS एक्ट है, जिससे आप किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के साथ साथ उस पर सर्टिफिकेशन मार्क्स को भी चेक करें। सो आफ्टर द डिस्कसिंग दिस टॉपिक, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ हु कैन फाइल अ कंप्लेन। यू कैन सी डैट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। Thereafter we discuss the various kind of acts who provide the protection to the consumer, यानी जो consumer को protection provide करता है।
एंड देयर आफ्टर उसमें हम लोगों ने कई एक्ट्स डिस्कस किए, वो भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ. द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, as various kind of act, that is essential commodities act 1955. So now we will move to the next topic, that is who can file a complaint, यानी complaint कौन कर सकता है. The following can file a complaint under the act. Which act? Consumer Protection Act 1986. क्योंकि today's, you know very well, our last chapter is consumer protection, and we also discussed the silent feature of the Consumer Protection Act 1986. So this is a very important part of this chapter, that is who can file a complaint. यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में कौन कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द फॉलोइंग कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर द एक्ट. नंबर 1, अ कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है. अ वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्स्ड, या कोई और वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट 1956 में. नंबर 3, द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी कंप्लेन कर सकती है. और 1 और मोर कंज्यूमर वेयर देयर आर न्यूमेरियस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट, जैसे कि लाखों कंज्यूमर हैं या 1000 कंज्यूमर है, तो उन 10,000 लाखों कंज्यूमर के रिप्रेजेंटेशन के रूप में एक या कई कंज्यूमर मिलकर भी कंप्लेन कर सकते हैं, जो किसी कई सारे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें. एंड नंबर 5, अ लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड कंज्यूमर. सपोज कोई कंज्यूमर है, किसी प्रोडक्ट को खाने से या यूज़ करने से उसकी डेथ हो गई, तो उस केस में वो तो खुद कंप्लेन नहीं कर सकता ना, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या लीगल हायर है वो चाहे तो कंप्लेन कर सकता है अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर, अगेंस्ट कंपनी, अगेंस्ट seller. So who can file a complaint? A consumer, voluntary consumer association, central government or state government, 1 or more consumers where there are numerous consumers, and number 4, a legal hire or representative of a deceased consumer. And now the next topic, that is against whom a complaint can be filed. यानी कंप्लेन किसके खिलाफ फाइल होगी. ओके मतलब हम कंप्लेन तो करेंगे बट कंप्लेन किसके खिलाफ कर सकते हैं. अगेंस्ट whom a complaint can be filed. नंबर 1, a complaint can be filed against seller. हम कंप्लेन कर सकते हैं सेलर के खिलाफ, मैन्युफैक्चरर के खिलाफ, डीलर ऑफ गुड्स के खिलाफ, whose goods are defective, यानी जिस बंदे का गुड्स डिफेक्टिव होता है उसके. when any goods are defective, so in this situation every consumer complain against the seller, manufacturer and dealer of goods. And number 2, it can be filed against the provider of service if they are deficient in any manner. यानी अगर गुड्स के केस में देखा जाए, अगर गुड्स डिफेक्टिव होता है तो उस सिचुएशन में हम सेलर को, मैन्युफैक्चरर को या गुड्स के डीलर को कंप्लेन कर सकते हैं, उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं. उसी तरह से अगर सर्विस ख़राब होती है, सर्विस किसी तरह से डिफिशिएंट होती है, तो उस सिचुएशन में हम जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं. डिफेक्ट मीन एनी फॉल्ट. यहाँ डिफेक्ट का मतलब क्या है? डिफेक्ट मीन्स एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्ट कमिंग इन द क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी ऑफ गुड्स. डिफेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है, डिफेक्ट मीन्स फॉल्ट, उस गुड्स या प्रोडक्ट सर्विस के साथ कोई फॉल्ट हो, इम्परफेक्शन हो, शॉर्ट कमिंग हो, किस रिगार्डिंग? क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग. एंड डिफिशियंसी की अगर बात करें, इट मीन्स इम्परफेक्शन, शॉर्ट कमिंग, इनएडिक्वेसी इन द क्वांटिटी, इन द क्वालिटी, नेचर एंड मैनर ऑफ सर्विस. सो यू कैन सी दैट डिफेक्टिव वर्ड वो किस सिचुएशन में यूज़ होता है? इन केस ऑफ द गुड्स. सो डिफेक्टिव का मतलब होता है उस गुड्स के साथ कोई फॉल्ट हो, इम्परफेक्शन हो, उस प्रोडक्ट में जितनी क्वांटिटी बोला गया था उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग हो, चाहे क्वालिटी में, चाहे क्वांटिटी में, चाहे प्योरिटी में. बट डिफिशियंसी का मतलब यहाँ पर किस रिगार्डिंग है? डिफिशियंसी मीन्स in relation to the service. So it is a imperfection, shortcoming और inadequacy, यानी आपको जो सर्विस दी गई वो पर्याप्त नहीं थी. सो इस सिचुएशन में आप चाहो तो सर्विस प्रोवाइडर
or in case of goods you will complain against the seller, manufacturer or dealer of the goods. So this is a very important topic of this chapter, that is who can file a complaint and against whom a complaint can be filed. So at the end of this video, now we will move to the last topic of this video, that is a relief available. अगर कोई कंज्यूमर कोर्ट्स में, कंज्यूमर फोरम में, यूनिवर्सल 3 टायर सिस्टम है, दैट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन के अगेंस्ट कोई कंप्लेन करता है, अगर उसकी कंप्लेन जेन्युइन होती है तो उसे कई तरह की रिलीफ अवेलेबल हो सकती है. सो इफ़ the consumer court is satisfied about the genuineness of the complaint, it can issue one or more of the following direction to the opposite party. यानी अगर कंप्लेन का रीज़न जेन्युइन होता है तो सिचुएशन में कंज्यूमर कोर्ट कई तरह की रिलीफ्स इशू कर सकती है, चाहे एक ही रिलीफ या एक से ज़्यादा भी रिलीफ इशू कर सकती है. क्या क्या रिलीफ्स मिल सकती है कंज्यूमर्स को? टू रिमूव द डिफेक्ट इन द गुड्स और डिफिशियंसी इन सर्विसेज, अगर सर्विसेज में कोई डिफिशियंसी हो या गुड्स में कोई डिफेक्ट है तो उसको रिमूव करिए. टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विथ अ न्यू वन और फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, यानी एक नया प्रोडक्ट प्रोवाइड करिए जिसमें कोई डिफेक्टिव ना हो, रिप्लेस करिए. टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट और द चार्ज पेड बाय द सर्विस, सर्विस या गुड्स के लिए जो भी प्राइस चार्ज किया गया था उस प्राइस को रिफंड करिए. एंड नंबर 4, ये तब केस में दिया था जब आपको उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से कोई हार्म पहुंचता है, तो उस सिचुएशन में नंबर 4 की रिलीफ भी अवेलेबल होती है, डेट इज़ टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस ऑफ इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द अपोजिट पार्टी. मीन्स जब किसी कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने से कोई इंजरी होती है या कोई लॉस होता है इन मोनेटरी सेंस, तो सिचुएशन में अपोजिट पार्टी मीन्स मैन्युफैक्चरर, सेलर या डीलर्स को रीजनेबल अमाउंट का कंपनसेशन भी पे करना पड़ता है, टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन. ओके. नंबर 5, टू पे प्यूनिटिव डैमेजेस इन एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस. ठीक है, अगर कुछ ऐसे डैमेजेस हैं जिनकी भरपाई नहीं कर सकते हैं कुछ केसेस में, तो उसके लिए भी आपको कुछ पे करना पड़ता है. टू डिसकॉन्टिन्यू द अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एंड नॉट टू रिपीट इट इन फ्यूचर, और ये भी उनको वार्निंग मिलती है कंपनीज़ को या मैन्युफैक्चरर्स को कि वो फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई अनफेयर या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करेंगे. नॉट टू ऑफर हार्जोडियस गुड्स फॉर सेल, इनको ये भी वार्निंग मिलती है कि अब फ्यूचर में वो कोई भी हार्जोडियस गुड्स सेल के लिए ऑफ़र नहीं करेंगे. टू विदड्रॉ द हार्जोडियस गुड्स फ्रॉम द सेल, ये भी कभी कभी आपको सुनने को मिलता है कि कभी कभी कुछ प्रोडक्ट लॉस होते हैं फिज़िकली या इन्वायरमेंट के लिए, फिज़िकल के लिए, किसी भी पर्सन के फिज़िकल बॉडी के लिए इफ़ेक्ट होता है, फेवरेबल नहीं होता है, तो सिचुएशन में उस प्रोडक्ट को विड्रॉ कर लिया जाता है सेल के लिए, यानी कि अब कंपनी उस तरह के गुड्स मार्केट में सेल नहीं कर सकती. या फिर इन द वर्ड्स वी कैन से दैट टू सीज मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्जोडियट गुड्स एंड टू डिसिस्ट फ्रॉम ऑफरिंग हार्जोडियट सर्विस, यानी कोई ऐसा सर्विस है जो हार्जोडियट्स है या कोई गुड्स हार्जोडियट मतलब जो प्रोडक्ट हमारी लाइफ के लिए हार्म हो, चाहे वो सर्विस हो चाहे गुड्स हो, तो उसको सीज़ कर देना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को सीज़ कर देना. एंड नंबर लास्ट एक रिलीफ ये भी मिल सकती है, टू पे एनी अमाउंट not less than 5% of the value of defective goods or deficient services provided to be created to the consumer welfare fund or any other organization to be utilized in the prescribed manner. कभी कभी कंज्यूमर कोर्ट्स क्या करती है, उनके ऊपर कंपनसेशन चार्ज कराती है कि कम से कम मिनिमम 5% डिफेक्टिव गुड्स का जो 5% की वैल्यू है उतना कंपनसेशन प्रोवाइड करे कंज्यूमर को नहीं, बल्कि उस कंज्यूमर से रिलेटेड कंज्यूमर वेलफेयर फंड को, ताकि वो उस पैसे को उस सर्टेन प्रेस्क्राइब मैनर में यूज़ कर सके. एंड नंबर 11, टू इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. सपोज किसी कंपनी ने कोई गलत एडवर्टाइजमेंट दिखाया है जिससे कंज्यूमर कह सकते हो मिसकन्फ्यूज़ होकर उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, जो वो प्रोडक्ट की यूटिलिटी ही नहीं है. तो अगर एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन आता है तो कंज्यूमर कोर्ट्स क्या करती हैं, उसके लिए करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट लॉन्च कराती हैं. एंड नंबर 12, टू पे एडुकेट कॉस्ट टू एप्रोप्रिएट पार्टी. ये भी देखने को मिलता है कि कंज्यूमर कोर्ट्स पार्टीज़ को एप्रोप्रिएट या एडुकेट कॉस्ट प्रोवाइड करने के लिए भी फोर्स करती है. सो यू कैन सी दैट
अगर कंज्यूमर कोर्ट्स में कंज्यूमर ने जो भी रीज़न बताए हैं, जो भी कंप्लेंट्स दी हैं, अगर उस कंप्लेन में कोई भी बात सही निकलती है या फिर इन सेंस वो उनके दिए गए कंप्लेन या फिर सजेशन से डिससेटिस्फैक्शन से सेटिस्फाइड होते हैं, तो कंज्यूमर कोर्ट इस सिचुएशन में कंज्यूमर के फेवर में कई तरह के ऑर्डर इशू कर सकते हैं और उनको कई तरह के रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं. सो आई होप टुडे वी क्लियर्ड ऑल द डाउट्स वेरी इजली, ओके, एंड ऑल द टॉपिक्स वेरी इजली. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.